नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। चोपड़ा कांड को राजनीतिक रंग देकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है भाजपा। ये बातें कही है राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने। हत्याकांड के दोषियों के साथ साथ अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। राज्यसभा सांसद मौसम नूर भी पहुंची चोपड़ा। वरिष्ठ तृणमूल नेता व राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने चोपड़ा कांड को लेकर भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। सोमवार दोपहर को मृत छात्रा के परिवार वालों से मिलने चोपड़ा पहुंचे मंत्री गौतम देव ने भाजपा पर घटना को राजनीतिक रंग देकर इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सोमवार को चोपड़ा थाने के चुतरागंज में मृत छात्रा के परिवार के सदस्यों से मिलकर मंत्री ने उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। देव ने कहा कि इस घटना को लेकर भाजपा बाहर से असामाजिक तत्वों को लाकर इलाके में अराजकता पैदा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रा की हत्या से जुड़े लोगों एवं घटना के बाद इलाके में अराजकता फैलाने वालों को जरूर सजा मिलेगी। मंत्री गौतम देव ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पर घटना की जानकारी के बिना इस बारे में टिप्पणी करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि गौतम देव के अलावा मालदा के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मौसम नूर भी चोपड़ा पहुंचकर मृतक के परिवार वालों से मिली। उन्होंने भाजपा पर घटना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। मौसम ने कहा कि भाजपा घटना को लेकर सांप्रदायिक वातावरण तैयार कर रही है। तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर वे सभी चोपड़ा आए हैं। मौसम नूर ने कहा कि पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। वह भी चाहती है कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। राज्य के श्रम मंत्री गुलाम रब्बा ने इस्लामपुर नगर पालिका के प्रशासक व जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, चोपड़ा के विधायक हमीदुल रहमान भी चोपड़ा पहुंचे थे। আমার ছেলেকে আমি 11 বাজে চিল্লাই চিল্লাই শুয়াই দিলাম দেনে, আমি বাড়ি যাই শুয়ে পড়লাম, আর কিছু বলতে পারবো না। আপনার ছেলেকে কারা খুন করলো? কারা ফোন করছে কারা না ফোন করছে আমি কিছু বলতে পারবো না। আমার অসুখ আছে, আমি ট্যাবলেট খালে আর কিছু বলতে পারবো না, শুধু খালি ঘুমাই যাবো। মেয়ের ঘরে মারছে, মেয়ের ঘরে ওর দাদা মারছে, ওর দাদা মেয়ের দাদা মারছে আমার ছেলেকে। আপনার ছেলে ওর মেয়েটাকে এক ক্লাসে পড়তো? হ্যাঁ, দুজনে মাধ্যমিক পাস করছে। প্রেম ভালোটা ছিল না, এমনি মুখ দিয়ে বন্ধু ছিল, বন্ধু। আমরা জানি যে বন্ধু হবে, বন্ধু না যাই না। ওর বাড়িতে চুলা ধোনা মোলা নেই। হলো ঘটনা দেখলাম, যেখানে আমি মেয়ের মার সাথে কথা বলেছি, আপনারা ছিলেন, অন ক্যামেরা হয়েছে কথাবার্তা। মেয়ের বাবা উনি এমনই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, কথা বলার মতো সেরকম পরিস্থিতিতে ছিলেন না। এখনই মেয়েকে উনি দাহ করে এসছেন। আর মেয়ের আরেকজন কাকা এখানে আছেন, উনি পঞ্চায়েত সদস্য, এবং মেয়ের জ্যাঠার সাথে আমরা কথা বললাম। মেয়ের জ্যাঠার কথা শুনলে তারা চান যে তাদের মেয়ের যে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এই মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক, এবং এর সাথে দোষী কেউ থাকলে নিশ্চিতভাবেই সেই দোষীকে চিহ্নিত করে তারও যাতে বিচার হয়। গ্রামের মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ, তারা একসাথে থাকতে চায় এবং এর সাথে কোনো রাজনৈতিক সংস্রব বা রাজনীতির যোগ সেটা কোনো কিছুই নেই। সেটা ওরা দার্থহীনভাবে বলেছে, সেটা আপনারা শুনলেন। এবং ওরা কোন দল করে, কোন দলকে সমর্থন করে, আমি সেই ব্যাপারটা কিছু বলতে চাই না। সেটা ওর অন রেকর্ডে ওরা বলেছে, সেই ব্যাপার নিয়ে আমি কিছু বলবো না, সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। আমি এখানে এসেছি, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের আরও মন্ত্রী সহকর্মীরা রাস্তায় আছেন, তাদেরও আসার কথা আছে, তারা আশেপাশে আছেন, আসবেন। আমি যেটা এসেছি যে একজন কন্যাহারা পিতা এবং তার মাকে আমরা সান্ত্বনা দিতে এসেছি। একটা ক্লাস 10-এ জাস্ট পাস করেছে একটি মেয়ে, তার বয়স কত হবে, 16 বছর হয়তো হবে। সেই মেয়েটি এইভাবে অস্বাভাবিকভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। তার পিছনে যে কারণ থাকুক সেই কারণ পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে বার করা, এবং এর সাথে যদি কোনো অপরাধ চক্র বা কোনো দুষ্কৃতকারী যুক্ত থাকে তাহলে তার শাস্তি দেওয়া, এটা আমাদের বিষয়। সেই জন্য এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের ঘটনা খুব দুঃখজনক। আমরা মর্মাহত, আমাদের সরকার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনিও মর্মাহত। তার নির্দেশে देश में पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले सामने, 587 लोगों की हुई मौतें।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले सामने आए और 587 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,55,191 हो गई है, जिनमें से 4,02,529 सक्रिय मामले हैं। 7,24,578 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 28,084 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 20 जुलाई तक कोरोना के लिए 1,43,81,303 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 3,33,395 का परीक्षण पिछले 24 घंटे में किया गया। पश्चिम बंगाल में हर दिन बन रहा है नया रिकॉर्ड। फिर से 24 घंटे में 2,282 नए मामले सामने और 35 लोगों की हुई मौतें। संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना का हर दिन नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। सोमवार को लगातार तीसरे दिन 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,282 नए मामले सामने आए एवं 35 लोगों की मौतें हुई है। एक दिन पहले भी रिकॉर्ड 2,278 नए मामले सामने आए थे एवं 36 लोगों की मौतें हुई थी। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 40,000 को पार कर गई है एवं मरने वालों की संख्या 1,147 हो गई है। बुलेटिन के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 40,759 हो गई है, जिनमें से 17,204 एक्टिव केसेस है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें 26,418 रोग शामिल है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,535 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। रिकवरी रेट मामूली बढ़कर 59.01% है, जो एक दिन पहले 58.56% था। कोविड-19 से दुनिया में अब तक 6.13 लाख हुई मौतें। अब तक 88.98 लाख लोग हुए हैं ठीक। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,48,50,443 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 88,98,780 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,13,139 लोगों की मौतें हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ट्वीट किया, अगर मास्क पहनना देशभक्ति है तो यहां मुझसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। वहीं रविवार को फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे मास्क पहनने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इससे कई दिक्कतें भी होती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स में 31 जुलाई तक बढ़ाया संपूर्ण लॉकडाउन, बढ़ेगी सख्ती। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कंटेनमेंट जोन्स में जारी संपूर्ण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने सभी कंटेनमेंट जोन्स में बीते 9 जुलाई से एक सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया था। वहीं संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए फिर से बढ़ाकर 19 जुलाई तक कर दिया था। अब एक बार फिर से इसको बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। दरअसल पिछले 2 दिनों में बंगाल में कोरोना में काफी डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। शनिवार को रिकॉर्ड 2,198 नए मामले एवं रविवार को 2,278 नए मामले सामने आए। रविवार को रिकॉर्ड 36 लोगों की मौतें भी हुई। राज्य में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 42,000 को पार कर चुका है एवं अब तक 112 लोगों की मौतें हो चुकी है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लगातार 30,000 के ऊपर दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौतों के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जब से टेस्टिंग प्रक्रिया की तीव्रता आई है, दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को केंद्र कर संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए सिक्किम सरकार के द्वारा आज एक विशेष बैठक संपन्न की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि कल 21 जुलाई सुबह 6 बजे से 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक राज्य को पूर्ण रूप से लॉकडाउन किए जाने की घोषणा कर दी गई है। इस बीच जरूरी परिसेवाओं को छूट दे दी गई है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFAI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection.
ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। असम में 26 जिलों में भीषण बाढ़ भूस्खलन, 27.64 लाख लोग हुए प्रभावित। अब तक 105 लोगों की हो चुकी है मौत। राहत शिविरों में 18,000 लोग रह रहे। यहाँ पर भी बना हुआ है कोरोना संक्रमण का खतरा। असम के 33 में से 26 जिले भारी बारिश, भीषण बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। इससे अब तक यहाँ 105 लोगों की मौतें हो चुकी है। करीब 27.64 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। राहत शिविरों में करीब 18,000 लोग हैं। बाढ़ के कारण बांस, टीन की छत से बनी लोगों का घर लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक असम में 31,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, यानी करीब 40% हिस्सा चपेट में है। इसकी बड़ी वजह असम पूरी तरह से नदी घाटी में ही बसा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ही है और बाकी 22,244 वर्ग किलोमीटर बारक नदी घाटी में है। हर साल बाढ़ की वजह से असम को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 1998 की बाढ़ में 500 करोड़ और 2004 में 771 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कोरोना टीके पर ऑक्सफोर्ड को मिली बड़ी कामयाबी, भारत में भी तैयार होगी वैक्सीन। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में ब्रिटेन को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन को इंसानी शरीर के लिए सुरक्षित पाया गया है। वैज्ञानिकों ने ह्यूमन ट्रायल के दौरान पाया कि इस वैक्सीन से लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया भर के कई देशों में चल रहे वैक्सीन निर्माण की कड़ी में यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उत्तर बंगाल के कई शहरों में लॉकडाउन के बावजूद नहीं थम रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। उत्तर बंगाल के 3 जिलों में मरीजों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। नए सिरे से स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और दमकल कर्मियों को संक्रमित होने से इलाके में आतंक का माहौल बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में उत्तर दिनाजपुर में 44 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 639 हो गई है। इनमें से 4 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 417 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 221 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। अगर बात मालदा की करें तो मालदा में 24 घंटे में 65 नए मामले सामने आए हैं और यहां भी कोविड का कहर लगातार जारी है। नए मामले सामने आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 691 हो गई है। दक्षिण दिनाजपुर में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 791 हो गई है।
3 जिलों में कई नए इलाकों में संक्रमण देखने को मिला है, जिससे प्रशासन द्वारा काफी सतर्कता बरती जा रही है। कल उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर अस्पताल में एक कोरोना वृद्ध की मौत हो गई थी, जो कोरोना संक्रमित पाया गया था। पश्चिम बंगाल में बैंक हर शनिवार को रहेंगे बंद। पश्चिम बंगाल में शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। राज्य में बैंक कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में बैंक प्रत्येक रविवार के अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं। राज्य के वित्त विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि राज्यपाल यहां घोषणा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में काम करने वाले सभी बैंक शाखाओं के मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून 1881 के तहत मौजूदा दूसरे और चौथे शनिवार को ही, साथ ही हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश होगा। इसमें कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।